Hi guys, welcome back to my YouTube channel Tech Developer. If you are new to my channel, I request you to kindly subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. And if you are already a subscriber and watching my videos, I really thanks and appreciate that my videos are helping you a lot, right? So now, if you have been following my Spring Boot Elasticsearch tutorial, in the last tutorial or in the last video, we have covered the count by type API, and in which we have used the poetry repository, that is a Spring data repository, to manage the count by type data, right? So in that video I have informed you that we have two another ways to get that data. One is the query DSL and one is the converting that query DSL using the Java builder, right? The Elasticsearch builder, you can say. So let's run that query DSL and execute that, and let's see how we can convert that query DSL into the API response, right? Means we will be doing the same API, the count by type using the query DSL. So for that, first of all, you need to open your Kibana. Go to the Kibana. One second, let me open that. Go to that Kibana and open the dev console in that. You can say the dev tool, because there you will be able to run your queries, right? So let's wait for this dev console to be loaded. Yes. So now the console or the dev tool for Elasticsearch Kibana is ready. Let me show that the queries are working fine, right? Means we have just simply hit the query for the poetry search, right? So now the thing is that what we have to do is we have to do that we have to give the count for that particular type of the poetry, right? Means we need to do some aggregation on the type to get that poetry, right? So for that we will write the query over here, that will be the direct aggregation, and the aggregation will be types aggregation. The aggregation type will be terms, and the field will be the type, and that type will be the poetry, right? Let me hit that API, and what you will see. Okay, so let me do one thing, that size of the result set to be 0, right? Because we do not need the all data, we just need to get that life and means the type of the data, right? So here you can see, guys, that simple query that we have written. The size means it will return you the list of records in the hits array. So in the hits, basically those document detail itself will come over, right? So instead of that, what I am doing, I am saying that give me only the aggregation data, and I do not want that particular document details later डिटेल्स राइट. सो उसके लिए मैंने साइज को जीरो कर दिया. अभी अगर मैं यहाँ पे साइज का कॉलम हटा दूँ, मतलब साइज की पार्ट को हटा दूँ इस क्वेरी में से, और फिर मैं हिट करूँ, तो आप देखोगे हिट्स, इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर हिट्स का ऑब्जेक्ट है. उस हिट्स के अंदर ऑब्जेक्ट के एक हिट्स का एरे है, ठीक है. उस एरे के अंदर मेरे को इंडेक्स बताया कौन सा, उसकी आईडी क्या है, उसका स्कोर क्या है, और उसके अंदर एक सोर्स आता है जिसके अंदर मुझे वो सारा डॉक्यूमेंट का डिटेल दे दिया, यानी कि आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, क्रिएशन टाइम, राइट. तो मैं अननेसेसरी ये सारा डेटा मुझे जब चाहिए नहीं, तो मैं क्यों लूँ. इसीलिए मैंने साइज को कर दिया 0, ठीक है. अब साइज 0 किया तो मुझे उसने दिया एग्रीगेशन का डेटा. बिकॉज सर्च, देखो क्या होता है ना, जो इलास्टिक सर्च की क्वेरी होती है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं. एक तो होती है आपकी बुलियन क्वेरी, मतलब जिसमें आप फिल्ट्रेशन करती हो, राइट, या जिसमें आप कंडीशंस ऐड ऑन करते हो. तो
और एक होती है एग्रीगेशन क्वेरी, और मतलब कि एग्रीगेशन जेसन। एक होता है बुलियन जेसन, यू कैन से द क्वेरी जेसन, और उसके बाद आपका होता है एग्रीगेशन जेसन। ठीक है, तो हमें एग्रीगेशन जेसन यूज करना है, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू दी ग्रुपिंग ऑफ दैट डेटा, राइट। सो ग्रुपिंग अगर आप सीक्वल में भी नॉर्मल करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन बोलते हैं ना, राइट। तो मैंने सेम एग्रीगेशन किया। मैंने कहा मुझे टर्म्स के ऊपर एग्रीगेशन करना है। अच्छा, टर्म्स का मतलब क्या है, पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर एग्रीगेशन करना है, यानी कि टर्म, वो टर्म्स कितनी है मेरे पास। यानी कि जैसे मैंने कहा कि मुझे टाइप फील्ड के ऊपर जो है टर्म्स एग्रीगेशन मारना है, तब वो मुझे क्या देगा, वो मुझे की और डॉग काउंट देगा। अब की में क्या होगा, बेसिकली मेरे पास की में होगा कि कितने डिस्टिंक्ट टाइप हैं। अब तो इसने कहा लाइफ एक डिस्टिंक्ट काउंट है, लव एक डिस्टिंक्ट काउंट है, ठीक है। और डॉग काउंट उसका है 2, यानी कि लाइफ के तो मेरे पास 2 रिकॉर्ड्स हैं, और जहाँ पे लव प्रॉपर्टी टाइप है उसके 2 रिकॉर्ड्स हैं। और यही अपने को चाहिए था, अगर आपने नोटिस किया हो, जो लास्ट रिकॉर्ड हमने, सॉरी लास्ट वीडियो में हमने फैच किया था डेटा, स्ट्रिंग डेटा इलास्टिक सर्च से, वो यही था कि जो टाइप लव है उसकी पोएट्री डॉग काउंट 2 है, जो पोएट्री टाइप लाइफ है उसके डॉग काउंट 2 है, ठीक है। तो यानी कि हर उसके टाइप के हिसाब से 2 डॉग काउंट्स है ना। तो पहले हमने जो डेटा निकाला था, वो निकाला था स्प्रिंग डेटा इलास्टिक सर्च से। यानी कि जो नॉर्मल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि पहले आप लिस्ट ऑफ टाइप्स तैयार करो, फिर उसके बाद इलास्टिक सर्च के अंदर क्वेरी मारो काउंट्स के लिए, पर टाइप के लिए, राइट। तो वो कितना एक लंदी काम है, अगर आप मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड आपके पास है तो मिलियंस ऑफ लूप चलेंगे ना। तो इसीलिए उन सारी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, मैंने कहा कि एक डीएसएल क्वेरी बनाते हैं, यानी कि एक नॉर्मल इलास्टिक सर्च की क्वेरी लिखते हैं, और उसी क्वेरी को यूज़ करके हम डेटा रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो क्या होता है ना गाइस, कि क्वेरी जो मैंने बनाई है वो जस्ट सिंपल है। साइज का मतलब मैंने आपको बताया कि हिट्स के अंदर, यानी कि जो डॉग काउंट्स आपको रिटर्न करना है। अब बेसिकली अगर आप क्या करते हो गाइस, कि अगर मान लो आप एक सेलेक्ट क्वेरी चलाते हो टेबल के ऊपर, वो आपको नंबर जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो दे देता है, ठीक है। तो और मतलब वहाँ पे एक लगाते लिमिट, ठीक है। तो वो साइज बेसिकली यूँ मान के चलो कि वो उस पर्टिकुलर क्वेरी की लिमिट है, ठीक है। और उसके बाद एक आ पाता है क्वेरी। तो क्वेरी क्वेरी मैंने आपको बताया कि क्वेरी में मान लो आपने लिखा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पोएट्री। सो बेसिकली ये कह दिया सर्च इंडेक्स के, मतलब पोएट्री इंडेक्स के अंदर सर्च करो, साइड मुझे रिकॉर्ड की मान लो लिमिट चाहिए 20, ठीक है। मैं अभी समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। क्वेरी में मैंने बोला कि मुझे वो रिकॉर्ड्स दो जहाँ पे मेरा जो टाइप है वो है लाइफ, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, तो उसके अंदर लगाओगे बूल, एक बुलियन, जो कही रहेगी वो बुलियन, कि भाई टाइप जहाँ पे ये है तो मैच जो कर क्राइटेरिया वो बुलियन में हुआ, तो बुलियन आया। बुलियन के अंदर आपने क्या किया कि मुझे लगानी है फिल्टर क्वेरी। तो फिल्टर आपने एपीआई कॉल करी, उस फिल्टर क्वेरी में जो है आपने कहा कि मेरे को वैल्यू मैच करनी है। जो वैल्यू मैच होती है ना, बेसिकली वो टर्म्स के बेसिस पे होती है। टर्म बेसिकली फील्ड का नाम है, कि वो टर्म मतलब जो वैल्यू है, टर्म जो उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू है, उसे हम टर्म कह सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे टर्म जो है, अब यहाँ पे बताना है टर्म जो लगाना है मुझे, वो किस फील्ड के ऊपर लगाना है। मैंने कहा टाइप फील्ड के ऊपर लगाना है, और वैल्यू क्या होनी चाहिए, लाइफ होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं एग्रीगेशन वाले पार्ट को हटा रहा हूँ, ताकि आपको ये क्वेरी किस तरीके काम करती है वो बता सकूँ, ठीक है। तो अब बेसिकली मैंने क्या बोला कि मुझे पोइट्री वाली टेबल के अंदर सर्च करना है, और लिमिट मैंने बता दिया कि 20 रिकॉर्ड से ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। क्वेरी क्या लगानी है कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर टाइप उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फिल्टर आउट करो जहाँ पे मेरे जो टाइप कॉलम है उसकी वैल्यू लाइफ है, यानी कि क्वेरी
बुलियन क्वेरी, क्योंकि वो कंडीशन जो लगती है बेसिकली वो बुलियन के इसके ऊपर लगती है, ठीक है। तो इसीलिए बुलियन, और उसके बाद उसको फिल्टर करना है, ठीक है। फिल्टर बने जस्ट फिल्टर आउट द रिकॉर्ड, जैसे कि हम नॉर्मली जावा 8 स्ट्रीम में भी करते हैं, ठीक है। तो वो मैंने फिल्टर लगा दिया। अभी फिल्टर लगाने के बाद मैंने क्या किया, फिल्टर लगाने के बाद मैंने बोला टर्म, मतलब कि उस मुझे फिल्टर जो लगाना है टर्म एग्रीगेट टर्म के ऊपर फिल्टर लगाना है। टर्म यानी कि कॉलम की वैल्यू के ऊपर, यानी कि उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम दिया और उसकी वैल्यू दी। तो जहाँ पे भी इस पर्टिकुलर कॉलम यानी कि जेसन रिकॉर्ड के अंदर जो फील्ड होगी टाइप, अगर उसकी वैल्यू लाइफ होगी मुझे वो रिकॉर्ड ला के देगा। तो हम हिट करते हैं तो आप देखो यहाँ पे दो रिकॉर्ड दे रहा है। हिट्स के एरे के अंदर आप देखोगे तो दो जेसन रिकॉर्ड है, दोनों की पूरी डिटेलिंग कर रखी है इसने। आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, टाइप और क्रिएशन टाइम स्टैम्प, राइट। तो बेसिकली ये इस तरीके से काम करता है कि इतना पार्ट आप जिस तरीके से लिखते हो ना, ये बेसिकली आपको हिट्स का एरे देता है, हिट्स के ऑब्जेक्ट देता है, यानी कि वो सारा डेटा आपको देता है जो इस पर्टिकुलर कंडीशन में मैच कर रहा है। बट मुझे यहाँ पे डेटा नहीं चाहिए इतना सारा, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एग्रीगेशन चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं एक बार कंट्रोल जेड करता हूँ गाइज। यहाँ पे मान लो मैंने क्वेरी मैंने कहा कुछ नहीं है मेरी, साइज मेरा जीरो है, लिमिट मुझे नहीं चाहिए, हिट्स का डेटा मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिंपल लगाना है एग्रीगेशन, ठीक है। तो एग्रीगेशन लगा दिया। अब वो पूछता है कि किस तरीके की एग्रीगेशन, वो टाइप वो अपने आप ही आपको जब किबाना में यूज़ करोगे ना, तो आपको टाइप वो अपने आप ही एंटर करके दे देगा। तो उसके बाद आपको बताना है कि किस तरीके का एग्रीगेशन है। यहाँ पे टर्म एग्रीगेशन होता है, वैल्यू एग्रीगेशन होता है, और भी अलग डिफरेंट डिफरेंट एग्रीगेशंस होते हैं, जो अगर मैं समझाने बैठूंगा तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, क्वेरी बाय क्वेरी जो भी रिक्वायर्ड होगा हम उसी चीज़ के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा पहले ही आपको बताया कि टर्म्स एग्रीगेशन जो है कि इस तरीके से अपने को चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे उसने टर्म एग्रीगेशन बोला कि यहाँ पे आपने अपना एग्रीगेशन का नाम देना है। अगर मैं यहाँ पे एक बार क्वेरी हिट करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे देख रहे हो एग्रीगेशन में मेरे पास टाइप आया, ये वो नाम है जो आप रखना चाहते हो। कि भाई जैसे मान लो जो एक तरीके लिस्ट ऑफ टाइप मेरे पास आ गया, या ये यू कह लो कि जो हमने डीटीओ बनाया था ना बेसिकली, जिसमें ये था आपका कहाँ गया ये पोएट्री टाइप्स काउंट डीटीओ, वो आपने नाम दे दिया एक तरीके से, या कुछ भी नाम दे सकते हो, एनीथिंग, ठीक है। मैंने टाइप नाम दिया था इसको, ठीक है, नाम जो आपने एग्रीगेशन का दिया। अब उसके बाद कौन सी टाइप की एग्रीगेशन आपको लगानी है, मैंने कहा टर्म्स एग्रीगेशन लगानी है। अच्छा, वो बोला कि भाई टर्म्स एग्रीगेशन में लगा दूंगा, लेकिन किस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर लगाना है। मैंने कहा जो इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स के अंदर जो जेसन रिकॉर्ड है, मेरा जेसन ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक टाइप करके फील्ड है, उस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर मुझे जितनी भी टर्म्स हैं उनका एग्रीगेशन चाहिए। तो एग्रीगेशन का मतलब सिंपल होता है भाई, कि जो भी है एग्रीगेशन का मतलब ग्रुपिंग, ठीक है। तो उसी हिसाब से इसने ग्रुपिंग कर दी। तो इसने बता दिया लाइफ, इसने बता दिया डॉग काउंट, और इसने लव का भी अपना की बता दिया और डॉग काउंट बता दिया। तो की बेसिकली मेरा क्या है, की बेसिकली उस पर्टिकुलर टाइप फील्ड की वैल्यू है, और साथ में उसके कितने डॉक्यूमेंट काउंट है वो ही इसने बता दिए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल एग्रीगेशन कोई थी, कि जिसमें साइज अपना जीरो किया, क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड नहीं चाहिए। एग्रीगेशन मैंने पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर लगा दिया, उसका नाम मैंने जस्ट अभी रिकॉर्ड के लिए टाइप रख दिया है, इसको कुछ और दे देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। काउंट एग्रीगेशन मान लो मैंने नाम रख दिया, ठीक है, काउंट एग्रीगेशन नाम रखा। अच्छा, मुझे काउंट एग्रीगेशन तो चाहिए, ये तो मेरा नाम हो गया उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, जो अभी मैं क्वेरी बना रहा हूँ एग्रीगेशन की, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, ठीक है। की कह सकते हो जेसन की। तो और ये उसके अंदर वैल्यू हुई। अब वो वैल्यू क्या है, यानी कि जो क्वेरी है मेरी एग्रीगेशन की, वो है कौन सा एग्रीगेशन लगाना है। हमने कहा टर्म्स एग्रीगेशन लगाना है,
टाइप फील्ड के ऊपर। तो अभी दोबारा हिट करता हूँ क्वेरी को, और आप देखोगे काउंट एग्रीगेशन यहाँ से टाइप चेंज हो गया, क्योंकि वो जस्ट नेम है, जो भी नेम आप देना चाहो वो दे सकते हो, अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये आपकी। ठीक है, तो काउंट एग्रीगेशन मैंने लगा दिया। अभी उसने बोला कि बकेट्स, बकेट्स मतलब कि जो इस पर्टिकुलर एग्रीगेशन के अंदर लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स आएंगे वो आपके बकेट सारे के अंदर आएंगे। ठीक है, उसके बाद उस बकेट सारे के अंदर वो ऑब्जेक्ट होगा जिसमें आपका टाइप बता रहा है कि कौन सा टाइप है और उसके कितने डॉग काउंट है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेरी थी गाइस, इसको हमें यूज करना है। एक बार हम डीएसएल क्वेरी को कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, एक पोएट्री सर्विस आईएमपीएल को खोलते हैं, और इसके अंदर एक पोएट्री रिपोजिटरी डॉट काउंट बाय टाइप का, काउंट बाय टाइप का मेथड बना देते हैं। ठीक है, काउंट बाय टाइप का मेथड बना दिया। ऐड आगे नहीं, काउंट बाय टाइप ऑलरेडी बना हुआ है। अच्छा, एक मिनट, ऑलरेडी बना हुआ है गाइस। तो मैं इसको जो है एक तो टाइप स्ट्रिंग कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी रिटर्न टाइप आएगा मेरा कोई का जो जेसन है उसको हम एज स्ट्रिंग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग हो गया, या आप उसको डीटीओ भी इसका पूरा बना करके दे सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन वो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, जो है टुक टाइम आउट शार्ट्स, उनके अंदर टोटल सक्सेसफुल हिट्स, हिट्स का है ये। तो ये अननेसेसरी जेसन डेटा उस पर्टिकुलर डीटीओ में मुझे बनाना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसको एज अ टाइप स्ट्रिंग दे दिया, जो भी होगा एज अ जेसन स्ट्रिंग आ जाएगा मेरे पास। काउंट बाय टाइप ऑलरेडी मेथड बना हुआ है, टाइप मैंने हटा दिया, क्योंकि अब जो है टाइप हम नहीं देंगे, हम सिंपल इसके ऊपर क्वेरी डीएसएल लिखेंगे। तो एट द रेट क्वेरी हम लोगों ने लगाया, क्वेरी, ये क्वेरी लगा दिया। ठीक है, और वैल्यू इसके अंदर हमने पर्टिकुलर ये क्वेरी दे दी। तो ये, तो बेसिकली गाइज हमने स्ट्रिंग कंकैटिनेशन नहीं किया, क्योंकि जावा 17 हम लोग यूज कर रहे हैं, उसमें होता है कि ये ट्रिपल स्ट्रिंग कोट, ट्रिपल स्ट्रिंग कोट होता है, यानी कि जो भी आप इस पर्टिकुलर तीन कोट्स के अंदर जो भी डेटा डालोगे ना, वो उसी एज इट इज फॉर्मेट में लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है गाइज। तो हमने ये चीज़ यूज़ करी, उसके अंदर मैंने जस्ट क्वेरी जो बनाई थी कि बाना के अंदर, वो सेम एज इट इज़ मैंने पास ऑन कर दी। ठीक है, तो अब रन करने के लिए सिंपल आएगा, पोल्ट्री सर्विस एमपीएल में चलते हैं। तो यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी अधूरी है। तो स्ट्रिंग रिस्पॉन्स, ये मेरे लिए रिस्पॉन्स हो गया काउंट बाय टाइप का। यह वेरिएबल नेम मैं कुछ और भी दे सकता हूँ, काउंट बाय टाइप रिस्पॉन्स। ठीक है, काउंट बाय टाइप रिस्पॉन्स जेसन हो गया। अभी इसको रिटर्न हमें करना है इस पर्टिकुलर फॉर्म में, राइट। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे लिस्ट का, और यहाँ पे बनाएंगे, एक तो पहले मैं ऑब्जेक्ट मैपर का बना देता हूँ, ऑब्जेक्ट मैपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, न्यू ऑब्जेक्ट मैपर। ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट मैपर बन गया गाइस। ऑब्जेक्ट मैपर से हमने सिंपली इसको रीड करना है। तो ये बेसिकली हो गया आपका, पहले क्वेरी फायर हुई, उसके बाद ऑब्जेक्ट मैपर डॉट रीड वैल्यू, रीड वैल्यू हो गई। ठीक है, और रीड वैल्यू में जो सोर्स रहेगा मेरा, वो रहेगा काउंट बाई टाइप रिस्पॉन्स, मतलब स्ट्रिंग जो आई। उसके बाद उसके बाद आपका टाइप रेफरेंस, टाइप रेफरेंस, टाइप रेफरेंस बेसिकली और कुछ नहीं होता गाइस। ये टाइप रेफरेंस का मतलब है किस टाइप का अपने को डेटा चाहिए। तो सिंपली अगर क्लास टाइप सिंगल क्लास ऑब्जेक्ट है, तब तो आप पोएट्री टाइप से काउंट डीटीओ डॉट क्लास पास कर सकते हो। लेकिन अगर आपका लिस्ट टाइप है या सेट टाइप है, तो आपको इस तरीके से देना पड़ेगा, टाइप रेफरेंस, टाइप रेफरेंस आ गया। ठीक है,
और टाइप रेफरेंस का ऑब्जेक्ट बनाया, वहाँ पे मैंने बता दिया किस टाइप का डेटा है, ठीक है। उसके बाद डॉट गेट क्लास, और यू कैन से मल्टी कैच, ओके। एक तो ये जेसन ऑब्जेक्ट में पे ये एक्सेप्शन आ सकता है, तो इसको हैंडल करने के लिए हम स्नीकी थ्रोज का यूज़ करेंगे। स्नीकी थ्रोज एक वो है, आपका एनोटेशन है जो कि लॉम्बॉक प्रोवाइड करता है। तो आप सिंपली जो है उसके अंदर एक्सेप्शन को कैच कर सकते हो, ट्राई कैच बिना यूज़ किए, वो डायरेक्टली थ्रो कर देगा, राइट। तो रीड वैल्यू जो कर रहा था आपका, रीड वैल्यू तो कर रहा था, एक ये एक्सेप्शन दे रहा था, जेसन एक्सेप्शन दे रहा था ना। वन सेकेंड गाइस, ये जेसन मैपिंग एक्सेप्शन, राइट। जेसन मैपिंग एक्सेप्शन डॉट क्लास हमने उधर पे लगा दिया कि किस टाइप का एरर जो है ये आ सकता है, ठीक है। अभी ये बोल रहा है जेसन प्रोसेसिंग भी आ सकता है, हाँ जेसन प्रोसेसिंग भी लगा देते हैं। अच्छा जेसन, अच्छा ओके, तो आई थिंक जेसन प्रोसेसिंग इनफ है, नेस्टेड क्लासेस होंगी या तो, ये हो सकता है। जेसन प्रोसेसिंग हो गया, जेसन जनरेशन, हाँ। तो जेसन मैपिंग अगर आप देखोगे तो वो इसी को एक्सटेंड कर रहा होगा, डेटा बाइंड एक्सेप्शन को, ठीक है। और डेटा बाइंड एक्सेप्शन जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं ना गाइस, तो ये देखो, ये डेटा बाइंड एक्सेप्शन जेसन प्रोसेसिंग को एक्सटेंड कर रहा है, ये देखो, डेटा बाइंडिंग एक्सेप्शन जो है उसको एक्सटेंड कर रहा है, इसीलिए एक्सटेंड कर रहा है। तो उसका वो मेन टाइप हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, जेसन प्रोसेसिंग एक्सेप्शन, जो हमारी ये क्लास है, इसको उठा के रख दिया, और ये अपना एरर जो है हैंडल कर लेगा स्नीकी थ्रो। अगर मान लो कोई प्रोसेसिंग में एक्सेप्शन आती है तो वो ये वाली एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, ठीक है। ट्राई कैच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ट्राई कैच नहीं लगाया हमने यहाँ पे, और सिंपली हमने क्या किया कि उसको जो है ऑब्जेक्ट मैपर डॉट रीड वैल्यू किया, यहाँ पे वो जेसन रिस्पॉन्स दिया, और यहाँ पर ओ हो सॉरी गाइज, मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसका रिस्पॉन्स देखोगे तो रिस्पॉन्स इस फॉर्मेट में है, राइट। हमें इस फॉर्मेट को पहले रीड करना पड़ेगा, उसके बाद जा कर के ये हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर जो हम कस्टम ऑब्जेक्ट दे रहे हैं उसमें दे पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, कि इसको हम ऑब्जेक्ट मैपर से नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट मैपर से करेंगे तो प्रॉब्लम होगा गाइस। वन सेकेंड, पहले मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लूँ, न्यू एरे लिस्ट बनाया, वन सेकेंड, एरे लिस्ट बना दिया। अब उसके बाद ये है तुम्हारा कि काउंट बाय टाइप से आगे मेरे पास स्ट्रिंग, तो मुझे जेसन ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, जेसन ऑब्जेक्ट जकार्टा जेसन का, राइट। जकार्टा जेसन का नहीं यार, ओ आर जी डॉट जेसन का मुझे यूज़ करना पड़ेगा। पहले मैं उसकी लाइब्रेरी ऐड कर लेता हूँ, ओ आर जी डॉट जेसन, मेवन और ग्रेडल, देखते हैं। मेवन पॉम का चाहिए तो अपने को, ये हमने उठाया, लेटेस्ट वर्जन में उठा रहा हूँ, ये डिपेंडेंसी ऐड हुई, डिपेंडेंसी ऐड करेंगे पॉम डॉट एक्सएमएल में, ये आपका ये हो गया, ये एक ये डाउनलोड करेगा डिपेंडेंसी, तो ये इसको डाउनलोड करने देना गाइस, जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली डिपेंडेंसी ऐड कर ली, जिससे हम जेसन मैनेज करेंगे, ठीक है। तो ये जेसन ऑब्जेक्ट, ये जेसन ऑब्जेक्ट, ये हो गया न्यू जेसन ऑब्जेक्ट,
और इसके अंदर हमने वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स पास कर दिया। तो बेसिकली हुआ क्या है ना अभी कि इसके अंदर जो भी रिस्पॉन्स आ रहा था हमारे पास, जो भी ये रिस्पॉन्स आ रहा था, ये वाला, ये जो हमने क्वेरी से लिया था, ठीक है, तो ये जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब वो जेसन ऑब्जेक्ट से हम आइट्रेशन इजीली कर लेंगे। तो अभी सबसे पहले हमें निकालना होगा जेसन ऑब्जेक्ट में से एग्रीगेशन का ऑब्जेक्ट, क्योंकि अगर आप देखो इसके अंदर ये की है पर्टिकुलरली, ठीक है, शार्ट्स का, हेड्स का और एग्रीगेशन। अगर कीज अगर इसकी मैं दिखाऊँ ना गाइज, तो ये ये देखो आप, ठीक है, मेरे पास जेसन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो जेसन ऑब्जेक्ट में से मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट गेट करना है एग्रीगेशन, यानी कि जहाँ पे की मेरी एग्रीगेशन है मुझे वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट गेट करना पड़ेगा ताकि मेरे पास पूरा एग्रीगेशन का ऑब्जेक्ट आ जाए। ठीक है गाइज, तो अभी हम क्या करेंगे, एग्रीगेशंस का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एग्रीगेशंस का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा, जेसन ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा वापस, ये रहा जेसन ऑब्जेक्ट, एग्रीगेशन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हो गया जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट दिस पर्टिकुलर की। तो बेसिकली जो मेन जेसन ऑब्जेक्ट था मेरा, उसमें से मैंने जेसन ऑब्जेक्ट वापस निकाला जो कि एग्रीगेशन की से मैच करेगा। एग्रीगेशन की पे भी जो डेटा आ रहा है वो इटसेल्फ एक जेसन ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इसीलिए मैंने उसको बोला कि मुझे जेसन ऑब्जेक्ट जो मेन वाला है उससे गेट जेसन ऑब्जेक्ट करो जो जिसकी की एग्रीगेशन है, ठीक है। उसके बाद ये काउंट एग्रीगेशन आ गया गाइस, ठीक है। तो काउंट एग्रीगेशन निकाल लेंगे अब। तो ये काउंट एग्रीगेशन के लिए एक और जेसन ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मेरे को। ये है आपका ओ आर जी जेसन का, ये हो गया काउंट एग्रीगेशन, ठीक है। अब आ गया जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट, और की का नाम हो गया मेरा काउंट एग्रीगेशन। एक बार ये भी हो जाएगा। तो ये अब मेरे पास कौन सा पोजीशन आ गया, ये वाला पोजीशन आ गया, राइट। ये भी एक जेसन ऑब्जेक्ट है। अब इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर इसका तो कोई मतलब नहीं, ठीक है, और हमें जो मेन मतलब है वो हमें बकेट्स के मतलब है। तो बकेट्स क्या है, अब मेरे पास जेसन एरे है, ठीक है। तो मेरे पास काउंट एग्रीगेशन का जेसन ऑब्जेक्ट है ही। अब मैं बकेट्स एग्रीगेशन मतलब कि बकेट्स का जो है एरे निकालता हूँ, यानी कि जेसन एरे, ओ आर जी जेसन का याद रखना गाइस, पैकेज सही याद रहे। और ये हो गया आपका बकेट्स जेसन, और या फिर बकेट्स कह लो सिंपल। और ये हो गया आपका, ये एग्रीगेशन हो गया, हाँ एग्रीगेशन। थोड़ा सा नेमिंग वेरिएबल मैं कॉमन रखा हूँ गाइस, तो ताकि क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये बेसिकली पहले मेन ऑब्जेक्ट, फिर उससे एग्रीगेशन निकला, उस एग्रीगेशन वाले ऑब्जेक्ट में से काउंट एग्रीगेशन निकाला, ठीक है। अब काउंट एग्रीगेशन में से, वन सेकेंड गाइस, डॉट गेट जेसन है, ठीक है। और उसकी की क्या है, उसकी की है बकेट्स, बकेट है, बकेट्स, बकेट्स, ओके, इट्स अ बकेट्स, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये जो है जेसन है ये आ गया बकेट्स का, यानी कि अगर मैं सिंपल सिंपल कहूँ तो मेरे पास ये पर्टिकुलर एरे आ गया, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक लगाऊंगा कि अगर मेरा बकेट्स एम्प्टी नहीं है तो, राइट, या फिर लूप चला लेते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लिस्ट तो वैसे भी रिटर्न का ही है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर नहीं भी डेटा हुआ तो एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर देगा, राइट। उसके बाद बकेट्स डॉट फॉर ईच करेंगे। अब आता है बकेट।
तो जेसन ऑब्जेक्ट बकेट ऑब्जेक्ट, ये हो गया बकेट, राइट। तो बकेट को उसने बेसिकली जेसन ऑब्जेक्ट में टाइप कास्ट करना है। तो ये जेसन ऑब्जेक्ट में निकाल के रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ गाइस कि अगर आप बकेट्स का देखोगे, राइट, वो जेसन एरे है, ठीक है, उसके अंदर एक जेसन ऑब्जेक्ट है, राइट। तो बेसिकली ये क्या है, इसको इस जेसन ऑब्जेक्ट को मैं बकेट जेसन ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, राइट। नहीं तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, काउंट या कुछ और नेम दे सकते हो आप अपने हिसाब से। मैं इसको बकेट ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ फॉर द सिंपल क्लैरिफिकेशन। तो अब मैंने बकेट ऑब्जेक्ट गेट कर दिया, ठीक है। अब लूप में ये चल रहा है, बकेट ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गया। अभी बकेट ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास एक जेसन की है की, और एक जेसन की है डॉग काउंट, ठीक है। दोनों की हमें वैल्यू चाहिए। तो ये वाली इंटीजर है मेरी, ये वाली स्ट्रिंग है, राइट। तो बकेट ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू मुझे चाहिए फॉर जिसका की जो है वो की है, मतलब की जो है नेम एज अ की दे रखा है इन्होंने। तो इसीलिए ये आपका आ गया स्ट्रिंग में मेरी की, यानी कि टाइप। बेसिकली की जो है वो टाइप है मेरा, ठीक है। अब ऐसे ही इंट निकालते हैं, और यू कैन से द लॉन्ग, ये करते हैं टाइप, नॉट टाइप सॉरी द काउंट, और वो है बकेट ऑब्जेक्ट डॉट गेट लॉन्ग, और लॉन्ग मैंने किया डॉग काउंट, डॉग अंडरस्कोर काउंट, ठीक है। तो ये डॉग काउंट वाली की मेरे पास आ गई। तो ये लॉन्ग काउंट हो गया, ये टाइप हो गया। तो अब मैंने क्या करना है बेसिकली, इस पर्टिकुलर डीटीओ के अंदर, सॉरी डीटीओ लिस्ट डॉट, वन सेकेंड गाइस, पता नहीं आज क्या हुआ है। ये नया ऑब्जेक्ट बनाया, पोएट्री काउंट, टाइप काउंट डीटीओ। अभी इसमें आ गया टाइप और इसमें आ गया काउंट, ठीक है। तो ये सिंपली मैंने ऐड कर दिया, और ये जो है स्नीकी थ्रोस की अब नीड नहीं है, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया गाइस, मैंने काउंट बाय टाइप के ऊपर एट द रेट क्वेरी फायर किया, उसने जो भी जेसन क्वेरी हमने बनाई थी वो पास ऑन कर दी। उसके बाद वो जेसन ऑब्जेक्ट यूज़ किया हमने, मतलब कि जो स्ट्रिंग आई ना, जो जेसन रिस्पॉन्स इतना बड़ा आया, उसको मैंने जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। फिर उस जेसन ऑब्जेक्ट में से एग्रीगेशन वाला जेसन ऑब्जेक्ट निकाला। फिर उस एग्रीगेशन जेसन एग्रीगेशन ऑब्जेक्ट जो आया मेरे पास, उसमें से काउंट एग्रीगेशन का जेसन ऑब्जेक्ट निकाला। फिर उसके बाद उस काउंट एग्रीगेशन के अंदर एक जेसन आया था बकेट्स के नाम से, उसको मैंने निकाला बाहर। तो ये बकेट्स आ गया। अब हर बकेट के अंदर बकेट ऑब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर मैंने आइट्रेट किया। अब जो जेसन ऑब्जेक्ट आया है, यानी कि बकेट का जो ऑब्जेक्ट आया है, वो मेरा एक्चुअल रिकॉर्ड है, जो कि जेसन टाइप है। तो जेसन टाइप यानी कि की मैप वैल्यू पे, राइट। तो सिंपली हम उसको गेट कर सकते हैं, गेट स्ट्रिंग, गेट लॉन्ग, जो भी आपका डेटा टाइप मैच होता है उसका आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप गेट भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करो, आपने गेट स्ट्रिंग किया पर्टिकुलर की, वो की जो नाम दिया हुआ है इस की का, वो बेसिकली हमारा टाइप है, राइट। और बकेट ऑब्जेक्ट डॉट गेट लॉन्ग जो डॉग काउंट किया, वो हमारा काउंट है। तो टाइप और काउंट मैंने दोनों निकाल लिए, और उसके बाद अपना लिस्ट के अंदर उस पर्टिकुलर डीटीओ को ऑब्जेक्ट बना के, जिसमें टाइप और काउंट एज अ पैरामीटर पास किया, उसका लिस्ट प्रिपेयर कर दिया, और हमने सीधा अपना नॉर्मल जो रिस्पॉन्स पहले लिखा होता है एज इट इज़ वही रखा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि कैसे हम क्वेरी डीएसएल को अपने इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग डेटा रिपोजिटरी के अंदर कॉल करा सकते हैं,
ठीक है। तो एक बार इस एप्लीकेशन को रन करते हैं गाइस, और देखते हैं क्या हमारा आउटपुट सही है। अगर नहीं आता सही तो हम उसको सही करेंगे। तो एक बार एप्लीकेशन को रन करते हैं। एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो गई है गाइस। एपीआई की तरफ चलते हैं और डैशबोर्ड काउंट्स वाली एपीआई को फिर से हिट करते हैं। एक बार हिट करते हैं गाइस। 1 सेकेंड, इट इज गिविंग द एक्सेप्शन। साइज query malformed, no starting object after the query name। क्वेरी में कोई इशू हुआ क्या? साइज query malformed, no start object after query name। क्वेरी तो हमने एज इट इज कॉपी की है गाइस। हम्म 1 सेकेंड, क्या बोल रहा है? पासिंग एक्सेप्शन, साइज क्वेरी malformed, नो स्टार्ट आफ्टर क्वेरी नेम। स्टार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्यों भाई? साइज 0 मैंने दिया, उसके बाद एग्रीगेशन दिया, तो प्रॉब्लम क्या है? एक बार इसका डीबग करता हूँ गाइस। इसके डीबग लॉग खोलता हूँ, फिर देखते हैं जो क्वेरी बन रही है कहीं उसमें तो कोई इशू नहीं है। क्योंकि दिक्कत होनी नहीं चाहिए गाइस। ओके, तो मैं एक बार लॉग्स इनेबल कर लेता हूँ। लॉगिंग डॉट लेवल डॉट इलास्टिक सर्च, ठीक है। सर्च डीबग कर देता हूँ और इसको एक बार दोबारा रन करते हैं। एक बार हिट करते हैं गाइस। फिर से एक्सेप्शन दिया इसने। ये एक्सेप्शन वही दिया है यार। इसके लॉग्स क्यों नहीं प्रिंट हुए? लॉगिंग लेवल कर देता हूँ रूट। डीबग में कर देता हूँ। आना तो चाहिए गाइस। हाँ, ये अभी आने लगा ना गाइस। तो सर्टिफिकेशन इशू, इवेंट सिक्योरिटी। हम्म तो अभी एक बार देख लेता हूँ। या एक तो आरएमआई वाले ट्रांसपोर्ट वाले में बंद करता हूँ, पहले टीसीपी बंद करता हूँ, अदरवाइज ये लॉग्स ही चलते रहते हैं। तो एक बार इससे पहले मैं हिट करके देखता हूँ इसको ही, ठीक है। क्वेरी हिट करते हैं। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अरे यार, ये आउट गोइंग, ये सारी कनेक्शन इसने बनाया, डीबग मैंने खोल दिया ना। तो सर्च टाइप क्वेरी देन फेच टाइप की ट्रू, एक्टिव है दिस। ओके, तो अगर आप गाइस यहाँ देखोगे तो ये पोस्ट एपीआई इस पे तो जा रही है, सर्च टाइप ये है, देन दिस ये है, क्वेरी नहीं जा रही है। तो एट द रेट क्वेरी हमने जो बनाया है, चक्कर ये हो रहा है कि एट द रेट क्वेरी जब हम यूज़ कर रहे हैं काउंट बाय टाइप में, तो वो इसको ले जा नहीं रहा। बट ऐसा होता नहीं है गाइस। हम लोग नॉर्मली उसको भी, ओ, यहाँ पे वो वैल्यू नहीं है, एक्चुअली क्वेरी है। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू की बजाय क्वेरी हम लोग यूज़ करते हैं, देख लेते हैं एक बार। लेट मी रीस्टार्ट दिस। एक बार इसका लॉग सॉ करके देखता हूँ यार, वरना दिक्कत करेगा ये।
ठीक है, इसको दोबारा एक बार स्टार्ट करते हैं गाइस। हाँ, नेम मैंने आर्ग्यूमेंट का गलत दे दिया। हम्म। बट आई डू नॉट नो यार कि मतलब इस स्ट्रिंग बूट इलास्टिक सर्च में ऐसा क्यों है। क्योंकि अगर आपने नॉर्मली जेपीआई रिपोजिटरी यूज़ किया हो तो उसमें वैल्यू ही देते हो, वैल्यू एक एज इट इज जो है क्वेरी की तरह काम करता है, राइट। कि जो भी आपने क्वेरी दी है वो उसे एज अ क्वेरी ही समझता है। बट एनी वे स्ट्रिंग डेटा इलास्टिक सर्च का एक अपना इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो वो चीज़ एक बार चेक करते हैं कि अगर अभी चलता तो ठीक है। अभी चेक करते हैं कि अभी क्यों नहीं चल रहा। पासिंग एक्सेप्शन साइज क्वेरी malformed, वाई इट इज़ नॉट गोइंग अप यार। एक बार यहाँ पे डिबगर लगाता हूँ, आखिर चल क्या है, क्वेरी क्या आ रही है वो देखना पड़ेगा। क्वेरी में इशू नहीं होना चाहिए गाइस, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि क्वेरी तो मैंने आपको दिखा दिया है कि बाना पे चला करके, राइट। हिट करता हूँ, नो किया मैंने। ठीक है, यहाँ पे आया। क्वेरी क्या है ये, क्वेरी है स्ट्रिंग क्वेरी। ये सोर्स है ना क्वेरी का, वो ये रहा। साइज मैंने दिया 0, एग्रीगेशन निकाला। ये सेम एज इट इज़ क्वेरी जो हमने रन की है, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं तो फिर। सर्च रिक्वेस्ट तो बन गई है यार। पोस्ट ये है, सर्च क्वेरी क्वेरी देन फेच। ये क्वेरी हमारी जा रही है फ्रॉम जीरो क्वेरी, रैपर क्वेरी, दिस साइज दिस। एनीवे इसका अपना एक तरीका है लिखने का, वो अलग चीज़ है। यार क्वेरी तो हमारी सही बनी है। अनकैटेगराइज्ड इलास्टिक सर्च एक्सेप्शन, पासिंग फेल हो गई, बट क्यों। एनीवे गाइस, इसका मैं देखूंगा कि स्प्रिंग डेटा इलास्टिक सर्च के अंदर क्या इशू हो गया। Just pausing the video for the some time. Please have a patience. Yeah, hi guys, I'm back. So basically, I just checked it out that the implementation that we are looking for directly calling the query DSL using the Spring Data Elasticsearch is not yet supported like the other JPA repositories and other Mongo repositories are supporting it. So actually, to call this API, we have the another way that I was wanted to use that, but anyway, I was thinking that let use the repository, the query DSL, and it should work. So, but the implementation of this thing is not yet done by the Spring Data Elasticsearch for now in the specific version. Later on, they will definitely add on, but for now, they are not supporting this. So, what we will do, we will just copy that data and no particular Elasticsearch method would be called. So for that, what we will do, we will go back to this, right? And this one second, guys. String query. So one second, guys, 1 second. ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, हमने जस्ट क्वेरी वहां से ऑब्जेक्ट किया, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मान लो ये मेरी क्वेरी है, एक हार्ड कोड क्वेरी है, डीएसएल क्वेरी।
ठीक है, और इसको मैंने अब फायर करना, तो मैं क्या करूँगा ना, वेब क्लाइंट बिल्डर आई थिंक मेरे पास है या नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। नहीं है, ओके। तो लेट मी ऐड दी वेब क्लाइंट एपीआई in this particular Maven project. Let me add this. Just wait for a minute, guys. Just wait for a minute. Yes, guys. So let's continue. So सबसे पहले मुझे वेबफ्लक्स की डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी। तो वेबफ्लक्स की डिपेंडेंसी में डालता हूँ गाइस, गूगल पे वेबफ्लक्स SSL या मेवन। 6.1.3 लेटेस्ट ही उठाया हूँ गाइस। सो यहाँ पर पॉम डॉट एक्सएमएल यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो वर्जन ऑलरेडी डिफाइन है स्ट्रिंग पेरेंट्स में, तो यहाँ से मूव कर देता हूँ। तो अभी ये भी हो गया है डाउनलोड इंस्टॉल, ठीक है ना। तो मैंने ये वेबफ्लक्स की डिपेंडेंसी डाली है ताकि मैं रेस्ट एपीआई कॉल कर सकूं। तो एच टी टी ये सॉरी वेबफ्लक्स वेब क्लाइंट सॉरी वेब क्लाइंट डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड या बेस यूआरएल पहले दे देते हैं। तो बेस यूआरएल जो मिलेगा वो मिलेगा आपका ये वाला, स्प्रिंग इलास्टिक सर्च यूआरएल, ठीक है। एक मिनट, इसको एट द रेट वैल्यू करना पड़ेगा, स्ट्रिंग यूआरएल इलास्टिक सर्च यूआरएल, और इसके ऊपर जाएगा एट द रेट वैल्यू। ये आपकी इलास्टिक सर्च यूआरएल हो गई। यूज़र नेम पासवर्ड भी चाहिएगा, क्योंकि हम लोग जो है उससे स्ट्रिंग इससे वेबफ्लक्स से कॉल करेंगे एपीआई, नॉर्मल जैसे एचटीटीपी कॉल होती है हम उस तरीके से जो है कॉल करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने इलास्टिक सर्च यूज़र नेम किया, ठीक है दोस्त। उसके बाद यहाँ पे हमने पासवर्ड के लिए कॉपी कर लिया, ये एक मिनट। सो ये हो गया ये पासवर्ड, ठीक है गाइस। तो हमने यहाँ पे ये सारी तीनों फील्ड जो हैं वैल्यू गेट कर लिए। अब यहाँ पे बेस यूआरएल में इलास्टिक सर्च यूआरएल जाएगा, ठीक। उसके बाद कौन सी बिल्ड बिल्ड करनी है अपने को, ठीक है। ये बिल्ड हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर डॉट करके गेट कॉल मारनी है हमें। गेट कॉल जो मारनी है, डॉट यूआरआई देना है अब अपने को, ठीक है। डॉट यूआरआई देना है, और यूआरआई जाएगा स्लैश पोएट्री इंडेक्स मेरा किस नाम से है गाइस, मैं एक बार डबल चेक कर लूँ। पोएट्री ये सर्च है, ठीक है ना। ये मुझे एज इट इज़ कॉपी करना है। ये हो गया ये। सो बेसिकली मेरा हो गया एच टी टी पी या गाइस। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, सॉरी मैं एक्चुअली ये देख रहा था इलास्टिक सर्च यूआरआई है क्या पूरा। अच्छा, एच टी टी पी लोकल होस्ट 9200 पूरी वैल्यू है, तो मुझे कुछ कंकैटिनेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद स्लैश पोएट्री स्लैश सर्च मैंने वो लगा दिया यूआरआई,
यानी कि जो एपीआई का पाथ है। अब उसके बाद इसके अंदर हेडर जाएगा, क्योंकि हेडर में, हाँ हेडर में जाएगा यार, बेसिक, बेसिक में जाएगा क्या? हाँ, एक बार मैं चेक करता हूँ भाई इसमें, कंट्रोल शिफ्ट आई करके, कि हेडर जा तो रहा है जो नेटवर्क में यूज़र नेम पासवर्ड जा रहा है वो किस बेसिस पे जा रहा है। वन सेकेंड। ये सो फैच मेथड ये मैंने वो भेज दिया। हेडर्स में क्या क्या है? हेडर्स में परमिशन पॉलिसी, बेस 64 एस आई डी। ओके, होगा तो ये इलास्टिक सर्च का बेसिक ऑथेंटिकेशन गाइस। वन सेकेंड, ऑथेंटिकेशन हेडर वेबफ्लक्स। मैं एक्चुअली थोड़ा सा भूल गया हूँ, ऑथराइजेशन में है ना, ठीक है। तो हेडर नेम विल बी http headers डॉट ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन में ही रहेगा, लेकिन क्या आएगी वैल्यू? बेसिक और, ठीक है, तो स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट इलास्टिक सर्च यूजर नेम प्लस इलास्टिक सर्च पासवर्ड, यू बेस 64 डॉट गेट एनकोडर डॉट इनकोड। It not plus, sorry guys, it will basically the concat password, और डॉट एनकोड हो गया डॉट गेट बाइट्स, ठीक है। उसके बाद डॉट, बेसिकली ये पोस्ट एपीआई है ना, तो बॉडी भेजनी पड़ेगी मुझे। बॉडी, व्हाट हैपन टू मी यार। एक्सचेंज टू फ्लक्स, हेडर्स हो गया, एचटीटीपी रिक्वेस्ट हो गया, क्या था यार, एक्चुअली मैं ही भूल चुका हूँ। एक्सचेंज टू मोनो, दिस विल बी दी पोस्ट बॉडी। बॉडी डालेगी मेरी ये क्वेरी, ठीक है, बॉडी क्वेरी जाएगी, डॉट यूआई हो गया, यूआई के बाद बॉडी, बॉडी ऑब्जेक्ट, बॉडी वैल्यू, सॉरी, बॉडी वैल्यू में जाएगा, और बॉडी वैल्यू में जाएगी मेरी क्वेरी। क्वेरी मैंने डाल दी। अब उसके बाद एक्सचेंज टू मोनो, और ये हो गया स्ट्रिंग डॉट क्लास। यार
वन सेकेंड गाइस, पहले मैंने बिल्डर बनाया, उसके बाद उसमें बेस यूआरएल सेट किया, उसको बिल्ड किया, उसके बाद पोस्ट एपीआई उसकी यूआरएल डाली, हेडर्स मैंने ऐड किए, ठीक है, उसकी बॉडी वैल्यू मैंने ऐड करी, डॉट एक्सचेंज टू मोनो, और यही है एक्सचेंज टू मोनो। ठीक है, ये हो गया क्लाइंट रिस्पॉन्स। इफ क्लाइंट रिस्पॉन्स डॉट गेट स्टेटस कोड, क्या है यार, स्टेटस कोड डॉट इज सक्सेसफुल, 200 सक्सेसफुल, तब ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। सॉरी गाइस, मैं इसको ना ये कोई सोच रहा हूँ, रिटर्न करेगा क्लाइंट रिस्पॉन्स डॉट बॉडी टू मोनो, और मोनो रहेगा स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि जो जेसन अपने को आएगा वो एज इट इज़ यही आएगा। अब ये मोनो आ गया, उसके बाद मोनो डॉट ब्लॉक करूँगा मैं। अब ये क्लाइंट रिस्पॉन्स के लिए क्यों हुआ है, रिटर्न बोला तो एल्स, या अगर मान लो 200 स्टेटस नहीं आता तो मोनो या नल रिटर्न करेगा, और यू कैन से मोनो डॉट एम्प्टी। ठीक है, तो मोनो डॉट एम्प्टी रिटर्न किया, ब्लॉक हुआ, ये स्ट्रिंग में आया। अब स्ट्रिंग को मुझे ये सब करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये सारी चीज़ें इफ़ कंडीशन में डालूँगा। इफ़ स्ट्रिंग यूटिल्स डॉट हैज़ लेंथ काउंट बाय टाइप रिस्पॉन्स, उसके बाद ये किया नॉर्मली जो हम लोग कर रहे थे कि हमने स्ट्रिंग रिस्पॉन्स को जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया था, राइट। तो वही काम हमने इसको इफ कंडीशन में डाल दिया। बेसिकली गाइज मैंने क्या किया है ना, ये जो क्वेरी थी एज इट इज़ मेरे पास है, ठीक है, इसको एक वेरिएबल में ले लिया, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल एक एपीआई कॉल मारी है। अब वो चाहे आप वेस्ट टेम्पलेट से यूज़ करके ले लो, चाहे आप वेब क्लाइंट यूज़ करके ले लो, चाहे आप एचटीटीपी क्लाइंट यूज़ करके ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने वेब फ्लक्स यूज़ किया है, मैंने कहा वेब क्लाइंट डॉट बिल्डर बेस यूआरएल मैंने दे दिया, पोस्ट एपीआई दे दी, यूआरएल हमेशा पोएट्री जो मतलब इंडेक्स है उसके अंदर अंडरस्कोर सर्च करके यूआरएल रहेगा। हेडर में बेसिकली ऑथराइजेशन रहेगी, जहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों को कंबाइन करके उसका बेस 64 ऑब्जेक्ट बनता है, क्योंकि ये बेसिक जाता है ऑथेंटिकेशन। ठीक है, और बॉडी रहेगा, बॉडी में वैल्यू मैंने क्या पास कर दी, जो एज इट इज़ क्वेरी है वो मैंने एज अ बॉडी पास कर दिया। फिर मैंने उसका एक्सचेंज टू मोनो कॉल किया। मोनो बेसिकली सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, तो सिंगल ऑब्जेक्ट ही आने वाला स्ट्रिंग, तो उसको मैंने बोला एक्सचेंज टू मोनो। वो एक तरीके से फंक्शन है बेसिकली, वो फंक्शन को आपने कॉल करना है, वो लैम्डा एक्सप्रेशन या इनोनिमस फंक्शन कुछ भी कह सकते हो, वो मैंने यूज़ किया। मैंने कहा कि अगर उसके अंदर रिस्पॉन्स मेरे पास सॉरी स्टेटस कोड अगर 200 है, तो उसको बॉडी टू मोनो करके स्ट्रिंग में रिटर्न कर दे। बॉडी टू मोनो बेसिकली मोनो ऑफ स्ट्रिंग, मोनो और फ्लक्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। मोनो मीन्स सिंगल ऑब्जेक्ट की स्ट्रीम, और फ्लक्स मीन्स लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट की स्ट्रीम। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट की स्ट्रीम, नॉट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, उसकी स्ट्रीम। तो उसको ऑब्जेक्ट गेट करने के लिए ब्लॉक कॉल यूज करते हैं टू रिसीव दैट सिग्नल दैट रिटर्न दैट वैल्यू। ठीक है, और इसीलिए मैंने कहा कि अगर
तो बॉडी टू मोनो का मतलब है कि मोनो टू मोनो ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, अगर मान लो स्टेटस कोड मेरा 200 नहीं है तो मोनो डॉट एम टी रिटर्न हो जाएगा, और ये ब्लॉक करेगा तो ये आपका जो है स्ट्रिंग के अंदर डेटा आ जाएगा। मोनो डॉट एम टी का मतलब है कि मेरा जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, जिस टाइप में मतलब मैं डेटा रिटर्न कर रहा हूँ, वो बेसिकली नल रहेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे चेक लगाया कि अगर मेरे पास काउंट बाय टाइप रिस्पॉन्स जो है नल नहीं है और उसके अंदर कोई डेटा है, तब ये जो है उसको जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करे, जो काम हमने पहले किया था, और उसके अंदर डेटा सेट करेगा। ठीक है, और सिंपली उसके बाद हमने इसको रिटर्न कर दिया। चलो एक बार इस एपीआई को टेस्ट करते हैं गाइस। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, सॉरी फॉर दैट। बट क्या करूँ, मेरे पास मेरे को लगा था स्ट्रिंग इलास्टिक सर्च के अंदर भी चीज़ें हो जाएंगी, बट अभी तक जो है वो चीज़ें अपडेटेड नहीं हुई है। इसको क्या हुआ, रिक्वायर्ड ऑफ टाइप बीन स्ट्रिंग दैट कुड नॉट बी फाउंड। आई थिंक मैं एट द रेट वैल्यू मिस कर गया क्या? नहीं, एट द रेट वैल्यू तो है। स्ट्रिंग इलास्टिक सर्च एट द रेट वैल्यू तो है यार, तो फिर क्यों प्रॉब्लम कर रहा है ये? ये तो फाइनल लगा देता हूँ, ऑल आर कंस्ट्रक्टर बना दिया ना, चक्कर ये है। फाइनल लगा देता हूँ, ऑल आर कंस्ट्रक्टर है ही मेरे पास, तो ये इस वजह से कंस्ट्रक्टर की वैल्यू शायद ना फाउंड कर पा रहा हूँ। हाँ, ये रीज़न था क्या? अरे यार, ये दिक्कत क्या है? लगा तो दिया इसको स्ट्रिंग, वही मैं कर रहा हूँ। फाइनल हटा दिया तो भी नहीं चल रहा। एट द रेट वैल्यू तो होता है गाइस, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ इधर। वैल्यू मैंने किसका लिया हुआ है एट द रेट वैल्यू? वैल्यू देखना पड़ेगा, मैंने कहीं गलत तो नहीं लिया। यार लिया तो मैंने स्ट्रिंग का ही है। एक्सेशन भी मैंने सही लिया है गाइस, फिर ये क्यों नहीं चल रहा? वाई इट इज नॉट वर्किंग यार? पैरामीटर वन ऑफ कंस्ट्रक्टर दिस रिक्वायर्ड टाइप ऑफ स्ट्रिंग दैट कुड नॉट बी फाउंड। कोई पर्टिकुलर मैंने वैल्यू तो नहीं गलत दे दी या? मैच तो मैंने एज इट इज कॉपी करके ही डाला है, यू आई ही डाले हैं। पासवर्ड, यूजर नेम, यू आई। और इसको क्या चाहिए यार? लॉम्बॉक कहीं इशू तो नहीं कर रहा यार, कि कहीं वो रिपोजिटरी की वजह से इशू कर रहा हो और इसका कंस्ट्रक्टर में एट द रेट वैल्यू चल ना पा रहा हो? एक बार ही मैं इसको फाइनल हटा करके गाइस एट द रेट ऑटो वाइड करके देखता हूँ, अदरवाइज देखते हैं कि क्या इशू आ गया, क्योंकि लॉम्बॉक के साथ थोड़ा सा इशू आ जाता है कई बार। तो एक बार इसको रीस्टार्ट करते हैं। वही इशू है गाइस, लॉम्बॉक थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, क्योंकि वो इन एट द रेट वैल्यू का जो है डेटा ले नहीं पा रहा। पता नहीं क्यों ऐसे हुआ है, लेकिन हो सकता है कुछ वर्जन का प्रॉब्लम हो। बट ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा गाइस, या तो आप फाइनल वो करो, है ना। अदरवाइज इसका एक और तरीका होता है, वो मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ गाइस। सॉरी गाइस अगर वीडियो लंबी हो रही हो ना, उसके लिए रियली रियली सॉरी। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कुछ जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, कुछ इश्यूज आ रहे हैं आपके सामने ही है गाइस। और ये आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी ये इश्यूज आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों इश्यूज आ रहे हैं और किस तरीके से इनको रिजॉल्व करना है।
हम्म, एक बार इसको दोबारा चला के देखते हैं, ये चलता तो। हम्म, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल मेरे पास करंटली अभी नहीं है गाइस। इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है लॉम्बॉक की, लॉम्बॉक एनोटेशन नॉट वर्किंग विद @ वैल्यू। मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ गाइस, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये एक्चुअली लॉम्बॉक की कॉन्फ़िगरेशन भी होती है, तो मैं उसको जस्ट वीडियो को पॉज करके वो कॉन्फ़िगरेशन ढूंढता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। गाइस वो इलास्टिक सर्च की कॉन्फ़िग मुझे मिल नहीं रही है, क्योंकि मैंने कहीं और उसको सेव करके रखा था। तो एनीवे जब भी मुझे इलास्टिक सर्च उसकी लॉम्बॉक की कॉन्फ़िगरेशन वो मिलेगी, मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। बट अभी के लिए यार वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको सिंपली जो है चला देते हैं, उसके बाद इसको लेटर ऑन देखते रहेंगे। ठीक है। ऑटो वायर्ड, तो एक बार एप्लीकेशन को रन करता हूँ। गाइस इस वीडियो में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि एक तो एपीआई कॉल करना भी उसका देखना पड़ा था कि उसके अंदर डायरेक्टली @ क्वेरी डीएसएल नहीं चल रहा उस, और अदरवाइज उसका सोल्यूशन मैं देखने की कोशिश करूंगा, अगर मिलता तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा भाई। एनीवे तो हम लोग पहले ये डैशबोर्ड काउंट वाली एपीआई चेक कर लेते हैं, तो अभी उसका रिस्पॉन्स आता है कि नहीं। पोल्ट्री टाइप काउंट से डिटेल फेच्ड सक्सेसफुली, बट एम्प्टी आया मेरा। एम्प्टी क्यों आ गया यार? क्वेरी तो मेरी सही चली है। एक बार डिबग कर लेता हूँ, या तो मैंने कुछ कंडीशन गलत लगा दी है। यहाँ पर ये है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको हिट करता हूँ और रिस्पॉन्स देखते हैं पहले क्या आ रहा है। रिस्पॉन्स ही ना ला रहा है। रिस्पॉन्स क्यों ना ला रहा है? रिस्पॉन्स इज गेटिंग नल। ओके, एक बार मैं इसको यहाँ से दोबारा डिबग करता हूँ। क्लाइंट रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? क्लाइंट रिस्पॉन्स 1 सेकेंड। शो व्यू प्रॉब्लम्स नहीं है, वो डीबग कंसोल देखना पड़ेगा। डीबग शेल में इसकी वैल्यू चेक करता हूँ आखिर आ क्या ही है। क्लाइंट रिस्पॉन्स, मैंने कुछ या तो ऑथराइजेशन में गलती कर दी होगी, क्योंकि ऑथराइजेशन में काफ़ी टाइम हो गया है यूज़ किए हुए ना, तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। हम्म,
चेक पॉइंट मोनो असेंबली, या एक तो रिस्पॉन्स एक बार मुझे प्रिंट कराना पड़ेगा इसका। मैं इसको लॉक करता हूँ एक बार। इलास्टिक सर्च बेसिक ऑथ। बेसिक ही जा रहा है यार, टोकन नहीं ऑथ चाहिए मुझे। अच्छा, ओके। तो बेसिकली ये बोल रहा है इस तरीके से जाएगा। ओ, ओके। सो व्हाट आई वाज डूइंग इज आई वाज नॉट यूजिंग दिस फॉर्मेट। तो मुझे बेसिकली ये करना पड़ेगा, कहाँ पे है मेरा पासवर्ड, डॉट कॉनकैट करना पड़ेगा मुझे। हम्म, तो बेसिक ऑथेंटिकेशन का जो बेसिक इनकोडेड फॉर्म बनता है उसमें मैंने थोड़ी गलती की हुई है। तो एक बार अभी हिट करके देखते हैं एपीआई को। अभी भी ना लगा है। अभी क्या इशू है? अभी तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। हम्म, ऐसे ही तो पास करते हैं। लेट मी चेक दिस। अगर मैं यहाँ से इस एपीआई को कॉल करता हूँ, राइट, रन ऐड रिक्वेस्ट, इलास्टिक सर्च, ठीक है, और उसके बाद यूआरएल मैं देता हूँ ये, ठीक है, पोएट्री अंडरस्कोर, सॉरी अंडरस्कोर स्लैश अंडरस्कोर सर्च, पोस्ट एपीआई दूंगा मैं, इसमें बॉडी जाएगी,
बॉडी में रॉ और जेसन। तो जेसन मेरे पास ऑलरेडी कोई बनी हुई है पोएट्री रिपोजिटरी के, सॉरी सर्विस के अंदर। वो कोई है ये, ठीक है, ये मेरी क्वेरी है। और अगर मैं पहले जर्नली हिट करूँ तो ये बेसिकली मेरे से बोलेगा यूज़र नेम पासवर्ड के लिए। बिल्कुल सही है। तो मैं ऑथराइजेशन में जाता हूँ और बेसिक ऑथेंटिकेशन ट्राई करता हूँ। यूज़र नेम जाएगा इलास्टिक और पासवर्ड क्या है, पासवर्ड है ये। सो पासवर्ड मैंने डाल दिया, अभी सेंड करता हूँ तो ये डेटा आ रहा है। राइट गाइस, सो मे बी मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। मैं इसका एक बार वो देख लेता हूँ यूआरएल कोड कैसे रहेगा। कर्ल की जगह मुझे तू बता जावा में एचटीटीपी में बेसिक ये बनेगा। I do not know guys how it got generated, but let me put this right. Hmm, मैं इनकोड की जगह या गेट बाइट्स की जगह सीधा सीधा ये वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक बार इसको दोबारा ट्राई करते हैं। डैशबोर्ड काउंट्स, अभी भी null आया। Why it is getting null यार? I am trying to get it using the Elasticsearch query over here and the Kibana. It is working fine. Okay, let me pause the video. Let me check.